Hello, good morning, student. Good morning, sir. Good morning. Okay. So, my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, yesterday I have taught you test and set lock. Okay. So, all these are, you can say, extension of semaphore. So, in today's class, I will discuss some semaphore uses, how semaphore can be used. Okay. So, as I told you that semaphore is nothing but it's a shared variable, and there are two type of semaphore. One is the counting semaphore, and second one is the binary semaphore. Binary semaphore always lie between 0 or 1, either 0 or 1. Okay. So that's why it is called binary semaphore. And counting semaphore, it means it is incremented or decremented. Okay. So both are used for semaphore, and both and semaphore is used for critical section problem. Okay. So yeah, in semaphore, I have told you that there is a wait and there is a signal, and the process uh, which wants to enter into the critical section of any process. It means that firstly it will check whether the critical section is free or not. If it is free, then it's okay. Otherwise, it will wait for a while. Okay, and after executing critical section, the process gives a signal to the other that now critical section is freed by me. Okay, and the process goes. Clear? So for that, I have told you one example that is called test and set or test and set lock. It is also like wait and signal type of things. Okay, so each process it wants to enter into the critical section. Okay, firstly it will check whether the log value is 0. There is a log parameter. Test and set is a function. Okay, and firstly it will test, and if test means it test for critical section is free or not. If it is free, then okay, it will set. So firstly, there is a you are seeing here that in the test and set function there is a log variable. Log value is 0. It means currently a critical section is currently vacant. No process is occupied it. Okay. So the process which are waiting outside to the critical section, now they have the chance to uh, enter into the critical section and execute critical section. Okay. And if log value is 1, it means that critical section is occupied by some other process. Okay, so other process must have to wait. So the process which is in the critical section, after completing the task, it make the log value parameter is 0. Clear? So I have told you yesterday. Now today I am going to discuss about some semaphore uses. तो semaphore uses कैसे यूज करते हैं, क्लियर है? तो इसमें क्या है कि देखो दो चीजें हैं, ठीक है, और दो चीजें क्या है कि एक हम लोग सिंक का यूज करते हैं. सिंक मतलब सिंपली इट मींस दैट इट इज यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पस. ओके, it is meant for synchronization purpose, and there is a mutex variable. Mutex variable means that it is meant for mutual exclusion property. Okay, so if there are two process, basically all critical section problem are based on two process algorithm. Means one, there are two process. One is
is in the critical section and other is waiting for that. Okay. So sync is nothing but it's a variable used for synchronization purpose, and mutex is nothing but it is used for mutual exclusion. Okay. So uh, when there are two process and there are two statement S1 and S2. Okay. So uh, eh, these two process require S1 to happen before S2. Means there are two process P1 and P2. Okay. Or there are two statement S1 and S2. Statement means there the execution these statement must be executed. Okay. So and here condition is that the statement 2 occurs after S1. S1 जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे requires S1 to happen before S2. मतलब क्या है कि S1 पहले होगा और S2 बाद में है. ठीक, क्लियर है? तो अब देखो क्या है, तो अब इसमें क्या है कि दो वेरिएबल लिया गया है, एक सेमाफोर सिंक लिया गया है, ये सेमाफोर है एक तरीके से दोनों. ठीक है, क्लियर है? और एक ये सेमाफोर सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया गया, ये सेमाफोर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज किया गया. ठीक, तो अब देखो क्या है कि हमें क्या करना है S1 को. ठीक है, प्रोसेस P1 और P2 है. ठीक, P1 में, ठीक है, P1 क्या करना चाहता है, इट वांट्स टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन, एंड इन दैट क्रिटिकल सेक्शन, मतलब ये पूरे जो प्रोग्रामिंग कोड है, इन दिस देयर इज ए restrictions, and the restriction is that the S1 must be occur before S2. Clear hai? So what happens, so this algorithm is for P1. We have to execute the code for execution of S1. So firstly it will check whether the whether signal is there or not, means signal is on or not. Okay. If signal is on for S1, यहाँ का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट the signal is on for statement 1 in the process. Clear? Then up I have told you a lot of time that each process which has got the signal to execute the critical section, but it will always check, okay, if there is no process into the critical section. Okay, it is doing because of checking the mutual exclusion property. Here mutual exclusion property क्या कहती है कि if there is a process into the critical section, other process must have to wait. तो यहाँ पे देखो क्या है कि one have got the signal. Okay, signal sync यानी कि ये semaphore is on, signal ये on, but it will check for mutual exclusion. वो क्या करेगा, वेट करेगा. ठीक, म्यूटेक्स. क्लियर है? तो अगर क्या है कि अगर ये वेट म्यूटेक्स इज ऑन, इसका मतलब क्या है कि सम अदर प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ओके, इफ इट इज नॉट executing, wait mutex is not executing, it means there is no process into the critical. So what will happen, P1 have the signal, there is no wait, it means P1 will execute its critical. Here it will execute the critical, and after execution it will give signal mutex. Mutex simply means mutual exclusion. Signal mutex मतलब क्या है कि now all the process who are waiting for outside the critical section, now they have got the signal from the P1 that it has released critical section. Clear? अब इसके बाद क्या होगा, देखो घूम फिर फिर के चीजें क्या होगी, वही चीजें होगी. ठीक है, कि अदर प्रोसेस मस्ट वेट. ओके, the process which got the signal for execution of critical section, it must check that other process is not into the critical section. If it is, then it has to wait.
If it is not, then it will enter into the critical section, execute it, and then signal, send a signal to other. यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया, दो सेमाफोर ले लिया गया है, ठीक है, एक सिंक और एक क्या ले लिया गया है, मीटर. So now, when P1 execute its critical section, it will give a signal and it will enter into its signal. ठीक है, यहाँ पे ये ठीक. अब देखो क्या है, जो दूसरा प्रोसेस है P2 क्या करेगा, P2 क्या करेगा, इट विल वेट. यहाँ पे क्या है, वेट सिंक, ठीक, क्लियर है, इट इज वेट सिंक. तो अब होगा क्या कि जब ये सिग्नल म्यूटेक्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा, P2 विल गेट द चांस, ठीक, P2 यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए सिग्नल ऑन हो जाएगा P2 के लिए, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट विल चेक फॉर वेट म्यूटेक्स. इफ इट इज then it is not able to enter into the critical section, otherwise it will enter into the. तो इसमें भी क्या है कि जो सिंक है और म्यूटेक्स है वो 0 या 1 ही है, ठीक है, सिंक 0 या 1 ही होगा, ये ध्यान रखना. क्यों, क्योंकि यह है बाइनरी सेमाफोर से इंक्लूड, ठीक है. तो अब ये क्या होगा, जो हमारा ये है ये प्रॉपर्टी या ये क्या कह सकते हैं सेमाफोर, ये कोड है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, जो P1 और P2 है, ठीक, वो दोनों क्या करेंगे, सिंक सेमाफोर और म्यूटेक्स सेमाफोर शेयर करेंगे, ठीक, और दोनों क्या होगा, इनिशियली इट विल बी 0, ठीक, क्लियर है, इट विल बी 0. तो अगर यहाँ पे सिग्नल सिंक है, ठीक है, और इट इज 1, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नल उसको मिल चुका है, ठीक है. और अगर क्या है, वेट है, ठीक, और 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वेट के लिए मतलब वेट करें. अब देखो क्या है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो देखो वही चीज है, जो हम लोगों ने एल्गोरिथम 1 पढ़ा या 2 पढ़ा, वो टर्न और फ्लैग से इंप्लीमेंट किया गया था. यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल दे दिया गया है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम. कॉन्सेप्ट इज दैट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज दैट इफ any process wants to enter into the critical section, it will check whether the critical section is vacant or not. If critical section is vacant, means it is not occupied by another process. The process which wants to enter into the critical, it will enter into the critical section, execute, and after execution it will give signal to us. Okay, clear है. तो कई सारे प्रोसेस अगर वेट कर रहे होंगे, ठीक है, उनमें से किसी एक प्रोसेस को सिग्नल मिलेगा, ये चीज है. अब आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है या क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सेमाफोर्स है, ठीक है. तो वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एक देख लेना, इसमें से एक दो हमेशा आते हैं, ठीक है. तो फर्स्टली आई विल गोइंग टू डिस्कस डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ठीक, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है. तो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है कि सिंपल देयर आर फिलोसोफर मोर देन 4. ओके, इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि देयर आर more than 4 philosophers would be there. Clear? So there are 5 philosophers in dining philosopher problem. There are 5 philosophers, 1, 2, 3, and 4. Clear? And the work of philosopher is to think. ठीक है, वो सोचते हैं, ठीक, और क्या कर रहे हैं कि एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं सराउंडिंग फॉर्म में. क्लियर है? एक बाउल है, ठीक, जिसमें चावल भरे हैं और उसमें क्या है कि ईट फिलोसोफर शेयर एक इंडिविजुअल बाउल. तो अब देखो क्या है कि एक तरीके से ये मल्टी प्रोसेस का एग्जांपल है.
एग्जैक्ट मल्टी प्रोसेस का। कैसे कि अगर ये प्रोसेसर है मान लेते हैं, और इसका ये रैम है, ये प्रोसेसर है, इसका ये रैम है, तो ईच प्रोसेसर हैव इट्स ओन मेमोरी। क्लियर है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, ध्यान देना, द whatever the resources is providing to the these philosopher or on a sharing basis। मतलब सबको क्या, देखो जैसे कि एक ये है, अगर एक ही बॉल होता, ठीक है, सबको एक ही बॉल, यहाँ पे इंडिविजुअल बॉल मिल गया है, तब तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट शेयरिंग द बॉल। ठीक, क्लियर है? लेकिन क्या है कि जो चावल खाने के लिए उन्होंने चॉपस्टिक दी गई है, या चम्मच कह सकते हो, ठीक है, वो क्या है, शेयरिंग बेसिस पे है। अब देखो क्या है, अगर चम्मच होता तो एक चम्मच से खा लेते हैं, बट इट दे हैव गिवन इट चॉपस्टिक। और चॉपस्टिक जानते हो कि बच्चों तुम लोग, क्या है कि बिना दो चॉपस्टिक लिए आप चावल या कोई भी जो फूड आइटम है, यू विल नॉट कुक। ओके, आप पिक नहीं कर सकते। ठीक, तो अब देखो थोड़ा समझना इसको, ये जो है ये और ये, दीज आर द फिलोसफर, दिस इज द डाइनिंग टेबल, center of the dining table rice bowl is there, each philosopher have its own bowl in which they are putting rice। ठीक, problem is that the chopstick given to them are in sharing। सबको देखो, सबको क्या है, सबको एक एक चॉपस्टिक दे दी गई है। ठीक, सबको एक एक चॉपस्टिक दे दी गई है। अगर दो चॉपस्टिक देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, दो चॉपस्टिक देते तो, अब देखो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में क्या है, फिलोसफर का काम क्या है कि वो सोचते हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो ज्यादा सोच लेते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है, भूख लग जाती है। ठीक, भूख लग जाती है तो क्या करते हैं, अपना चॉपस्टिक उठाते हैं और यहाँ से चावल लेते हैं और अपने बॉल में डाल देते हैं। क्लियर? अब देखो क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये, ठीक, दिस फिलोसफर गेट्स हंग्री, दिस फिलोसफर गेट्स हंग्री। अब देखो क्या है कि वो, उसे भूख लगी, तो अब क्या करेगा, चॉपस्टिक लेगा। तो अब देखो क्या है कि अगर ये फिलोसफर भी खाना खा रहा है या ये फिलोसफर भी खाना खा रहा है, तो नाउ दिस फिलोसफर मस्ट हैव टू गो, या ये फिलोसफर खाना खा रहा है, ये फिलोसफर खाना नहीं खा रहा है। ठीक, तो क्या होगा, इट विल गेट ओनली वन चॉपस्टिक। ठीक, इट मीन्स दैट कि फॉर ईटिंग both two must be free। क्लियर है? both two must be free। क्लियर है? तो दिस इज द डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। वही है, क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन का है, रिसोर्स शेयरिंग का है, या कोऑपरेटिंग प्रोसेस का है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम इन विच all type of things are there, means cooperating concept of cooperating process is there, concept of critical section is there, resource sharing is there, resource utilization is there। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये क्या हुआ, वेट कर रहा है, नाउ मतलब वो सोच रहा है, नाउ इट बिकम हंग्री, वो भूखा हुआ। ठीक है, उसे भूख लगी, तो इट विल चेक वेदर क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री और नॉट। ठीक है, ये फ्री है कि नहीं फ्री है। इफ इट इज फ्री बट इट इज नॉट फ्री, इट मस्ट हैव टू वेट। क्लियर है? तो अब देखो दो स्टेटमेंट है, एक S1 है, एक S2। ठीक, क्लियर है? तो अब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन एंड म्यूटेक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? तो अब देखो क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करो। ठीक है, या मतलब इसका कैसे एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये क्या है, चॉपस्टिक है, तो अब दो चीजें होंगी, एक हमारा क्या है, वेट, ठीक, और दूसरा क्या है, सिग्नल। तो इफ अगर इसको एक वेरिएबल मान ले, तो इसका अगर सिग्नल ऑन है और इस चॉपस्टिक का सिग्नल ऑन है, ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या होगा, इसका जो वेटिंग है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक, और अगर क्या है, इसका सिग्नल ऑफ है,
और इसका भी सिग्नल ऑफ है, तो इसका मतलब ये है कि इट मस्ट हैव टू वेट until unless this signal is become on। ठीक है, जब ये सिग्नल ऑन हो जाएगा तभी क्या होगा ये। ठीक, तो अब देखो क्या है कि अब इसमें जो थ्योरी है वो है फिलोसफर स्पेंड देयर लाइफ्स अल्टरनेटिंग thinking and eating, don't interact with their neighbors. Occasionally they try to pick up two chopsticks one at a time to eat from bowl. Need both to eat, then release both when done. Okay. In this case, there are 5 philosophers. They are sharing data. Bowl of rice data set और ये चीज। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक ये वाले हम जो राइस की बात करेंगे, ठीक है, ये शेयर्ड बेसिस पे नहीं है, शेयर्ड बेसिस पे सिर्फ ये। ठीक, तो क्लियर है ना, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो बहुत ही वेरी गुड एग्जांपल। तो सिंपल क्या है, ठीक है, देयर आर 5 फिलोसफर और वो क्या है, दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग एंड आफ्टर deep thinking they become hungry, they get angry, and when they get hungry तो क्या होगा, उनके पास बाउल तो है, ठीक है, बट चॉपस्टिक शेयर बेसिस पे है। ठीक, तो क्या होगा, इट विल चेक वेदर उनके लेफ्ट साइड और उनके राइट साइड द चॉपस्टिक्स आर फ्री और नॉट। इफ इट इज फ्री देन ओके, अदरवाइज दे हैव टू वेट। तो समझ गए ना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो ये सिग्नल देगा और ये वेट करेगा। ठीक, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है कि हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन लेंगे, एक वेट फंक्शन और एक सिग्नल फंक्शन। ठीक, अब देखो क्या है कि वो क्या होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, कि जैसे क्या है कि अगर ये, ठीक है, अगर इट ही इन्वॉल्व्स इन ईटिंग, ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये पूरा का पूरा ये ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला, ठीक है, देखो एक मिनट, ये जो अगर पूरा दोनों चॉपस्टिक ले लिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वेट करेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर ये फ्री है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको चांस मिलेगा, तो इसका मतलब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि if one philosopher is engaged in eating, it means जो उसके adjacent में है, it must have to be। क्लियर है, तो एक चीज तो ये मिली आपको कि अगर आयत है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको 0 मान लें, 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और इसको 5 मान लें। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 नंबर पे है तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो इफ one is engaged in eating, it means 0 and 2 must have to wait। क्लियर है, मतलब -1 और +1 क्या करेगा, वेट में ऑटोमेटिकली है। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है, कैसे करेंगे। एक फिलोसफर के लिए हम लोग बना रहे हैं, फिलोसफर आई के लिए। ठीक, अब इट इज वेटिंग फॉर चॉपस्टिक आई। ठीक है, कोई चॉपस्टिक के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो आईएथ नंबर के लिए, मान लेते हैं 3rd नंबर के लिए। अब हम 2 चीजें यहाँ पे लगाएंगे, वेट चॉपस्टिक i+1 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर 1 है, ठीक, तो इसका मतलब 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, यानी कि सेकंड, यानी कि जो पहला वाला है ये है, ठीक है, ये है, तो ये दूसरे के लिए वेट करेगा। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब देखो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वेट के लिए लगा देंगे। ठीक है, ये वेट कर रहा है, ठीक है, इट बाय एज्यूमिंग दैट कि उसको, जैसे ये आई नंबर है, ये 1 है, ये 1 है, ध्यान देना, ये 1 है और ये 1। ठीक, तो अगर ये वेट करने चला है, इसका मतलब क्या है कि इट इज अबाउट टू ईट, तो ये इट कंफर्म्स दैट कि वन चॉपस्टिक इज फ्री। ठीक है, उसके लिए। तो अब देखो क्या है कि एक चॉपस्टिक के लिए उन्होंने चेक किया, ठीक है, क्लियर है,
और दूसरे के लिए फिर चेक किया, जैसे ith के लिए चेक किया, उसके बाद क्या है दूसरे के लिए चेक किया, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक, तो 1 के लिए वेट किया और ये 2 के लिए, ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्योंकि उसे क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों चॉपस्टिक पे उसे देखना है कि इट इज फ्री और नॉट, इफ इट इज नॉट फ्री देन इट मस्ट हैव टू डू। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेट किया, ठीक, क्लियर है। अगर क्या है कि अगर ये वेटिंग कंडीशन नहीं है, ठीक, ये फंक्शन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इट विल हैव टू ईट, वो ईट, ठीक, क्लियर है, 1 और 2 को ईट करेगा। अब क्या है कि जब ये वाला है 1 नंबर वाला है, ठीक है, क्लियर है, तो ये 1 है, ये 2 है। तो अब ये जब it finish eating, then it will release the chopstick by giving a signal, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिग्नल चॉपस्टिक आई मतलब 1 और यहाँ पे 2। जैसे अगर हम लोग फिलोसफर 5 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 और 6 मतलब 1, ठीक, क्लियर है। अगर हम 5वें के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 5वां वेट कर रहे हैं, ठीक है, 5वां, जैसे ये 5 है, ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये और ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6 नंबर और 1, ठीक है, ये 5वां, ठीक, और इसके बगल में एक तरीके 6 आएगा, मतलब इसके बाद ये 1 आ जाएगा, तो 5वें और 1 को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, या ये क्या करेगा, गिव ए सिग्नल, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम, क्लियर है। तो मतलब ये क्या है कि इट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ या यू कैन से वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ डायनेमिक फिलोसफर। तो इसका क्या है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, इसका सी में प्रोग्राम बना सकते हो। हमें लगता है कि ओएस की अगर लैब होगी तो उसमें ये लैब होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट, क्लियर। तो अब देखो क्या है कि हमने आपको कई बार बताया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, या क्या कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कब हमें जरूरत पड़ेगी, इट इज नीडेड व्हेन एनीथिंग इज वर्केबल ऑन शेयर्ड बेसिस। कुछ चीजें शेयर होंगी तभी होगा, चाहे वो रिसोर्स हो चाहे वो मेमोरी हो, क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखो क्या है कि ये अगर सबको यहाँ पे सबको दो 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 चॉपस्टिक मिल जाते, सबके पास बाउल है, तो क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एराइज होती ही नहीं। जिसको भूख लगी अपने दोनों चॉपस्टिक उठाता है, खाना खा लेता है, इसको भूख लगती चॉपस्टिक उठाता एंड स्टार्ट ईटिंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वन चॉपस्टिक इज शेयर्ड बाय अदर, ठीक, हर ओक को एक एक चॉपस्टिक दे, तो प्रॉब्लम एराइज, so it have to check any philosopher who gets hungry, it have to check whether the left chopstick and right chopsticks are free or not, if it is free then। तो इसीलिए क्या है कि दो वेट लगाए गए हैं चॉपस्टिक के लिए, एक आई के लिए और एक आई प्लस, मतलब एक इसके लिए और एक एक इंक्रीमेंटल, ठीक। तो ये दिस इज कॉल्ड डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ये मतलब अक्सर पूछे जाते हैं दोनों। अब आते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। देखो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या है कि इट इज आल्सो वेरी क्लासिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में क्या है कि जो बफर है, ठीक है, देयर आर मल्टीपल प्रोसेस एंड वांट्स टू राइट और रीड। तो इफ ऑल प्रोसेस, हमने आपको बताया कि इफ ऑल प्रोसेस ट्राई टू रीड देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट when one process or more than one process try to write on that particular buffer or location, then problem arises, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इसमें क्या है कि देयर आर n buffers, ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ होल्डिंग आइटम। तो अब क्या है कि ये चेक करना है बाउंडेड बफर है, इट मींस दैट कि द बफर साइज कैन नॉट बी इंक्रीज। अच्छा एक चीज हम बता दें अभी आप लोगों को, ठीक, कि टुडे आई एम गोइंग टू टेक सरप्राइज क्विज, तो आफ्टर जस्ट एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर आई विल अपलोड द सरप्राइज क्विज टू योर गूगल क्लास, ठीक है। और देखो हमने पिछली बार बहुतों ने जमा कर दिया था, ठीक है, तब भी हमने क्या है 15 मिनट का रिलैक्सेशन दिया था, ठीक है। तो लेट न जमा करना, बहुतों के मैंने 0 मार्क्स कर दिए हैं। ट्यूटोरियल भी मैंने चढ़ा दिया है, चेक
check your marks through ERP. So I have uploaded the surprise quiz marks and tutorial marks. So today I am going to take surprise quiz number 2. ठीक है, उसका मार्क्स अभी हम चढ़ा देंगे, मतलब अभी ले लेंगे, और अभी गूगल क्लास में ध्यान रखना, गूगल क्लास में अपलोड कर देंगे, और विद इन 15 मिनट्स, वैसे 10 मिनट्स का है, 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू ग्रेस पीरियड टू अपलोड फॉर सच। ठीक है, तो अभी मैं गूगल क्लास पे इसको अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अभी जस्ट आफ्टर एंडिंग दिस क्लास देयर इज ए सरप्राइज क्विज। ठीक है, तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में देखो, इट इज आल्सो वेरी क्लासिक प्रॉब्लम। बाउंडेड बफर का मतलब क्या है कि ये एक बफर है, ठीक, इसमें आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि इट इज बाउंडेड बफर मींस its size is limited. Size is limited means if producer या रीडर्स या राइटर्स वांट टू राइट, अगर इसकी 10 MB साइज है, ठीक है, और राइटर वांट टू राइट 11 MB, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्लियर है? तो इट इज आल्सो सच लाइक ए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे बाउंडेड बफर भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या है कि बाउंडेड बफर में प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जो बफर का साइज है वो फिक्स है। ठीक, तो क्या होगा कि इफ राइटर वांट्स टू राइट, so it have to check whether the buffer is full or not. If it is full, so no writing process can be done. Okay, for readers, if there is no item in the buffer, the reader cannot read anything. Clear है? तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है कि दो राइटर, ठीक, कैन नॉट राइट एट द सेम टाइम, बट 2 रीडर्स कैन बी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 राइटर एक ही बफर में एक टाइम पे राइट नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर है? तो अगर राइट करना है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर प्रोड्यूस करना है, राइट करना है, तो क्या होगा, फर्स्टली इट विल चेक। यहाँ पे भी क्या है, देखो 2 सेमाफोर लिए गए हैं, एक एम्प्टी सेमाफोर और एक म्यूटेक्स सेमाफोर और एक फुल सेमाफोर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस, द प्रोसेस व्हिच वांट्स टू produce item or want to write any item, it firstly it will check whether it is empty or not. Empty means, not empty means पूरा बफर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि if it is empty means there is a space available to write, then okay, and then check if other process is not writing into the buffer. wait mutex का मतलब क्या है कि इसको चांस मिल गया है कि processor P1 have got the chance to write, but it will check that whether other process are not writing into the buffer. buffer में कोई दूसरा तो नहीं क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो ये वेट म्यूटेक्स वो चलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों इट्स ओके, इट का मतलब क्या है कि नाउ इट इज एबल टू प्रोड्यूस। जब ये प्रोड्यूस कर लेगा या ये राइट कर लेगा, ठीक, देन वो क्या करेगा, म्यूटेक्स सिग्नल, ठीक है, जनरेट कर देगा, एंड सिग्नल फुल, अगर फुल हो गया तो क्या करेगा, फुल हो गया तो अगर एक चीज ये भी तो है ना कि क्योंकि हमें राइट करना है, तो जो प्रोसेस विच इज राइटिंग एट द मोमेंट ही नोज दैट कि इट इज फुल और नॉट। तो ये भी क्या है कि अगर वो बफर फुल हो गया है, ठीक, तो क्या करेगा, क्या करेगा, उसको सिग्नल को फुल का सिग्नल दे देगा। ठीक, क्लियर है? तो दिस इज आल्सो ए बाउंडेड बफर प्रॉब्लम और इट्स ए क्लासिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंपल है, पहले तो चेक करेगा whether the buffer is empty. If it is empty, then it will check whether other process is not occupying the critical section. If it is both are favorable condition, it will write into the buffer, and after writing it will signal to other process, and if the buffer become full, it will also give this full signal. Okay, so this is called bounded buffer problem. ठीक है, क्लियर है?
तो एक एक दो प्रॉब्लम और बच गई हैं, 2 प्रॉब्लम है, कल के क्लास में मैं लूंगा। रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, वही चीज है, रीडर्स राइटर भी बाउंडेड बफर टाइप का ही है। ठीक, ठीक है। तो बाउंडेड बफर में भी क्या है, बस इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या है कि रीडर्स राइटर है, तो राइट करने के लिए देखेगा कहीं फुल तो नहीं है, ठीक है। और रीडर्स के लिए देखेगा, रीडर्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी दिखा देगा, ठीक है। वो अगर रीडर्स है, रीडर्स है, ठीक है, रीड करना चाहता है और ये चेक करेगा कि फुल है कि एम्प्टी है, तो अगर यहाँ पे क्या रीडर्स एम्प्टी अगर ऑन हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर रीडर्स के लिए अगर देखना चाहते हो तो ये क्या होगा, वेट फुल यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि फुल है, ठीक, क्लियर है। एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि रीडर्स कैन नॉट रीड एनीथिंग, ओके। तो ठीक है, अटेंडेंस सबने दे दिया है, ठीक, अटेंडेंस दे दो। मैं अभी थोड़ा सा क्लास पहले 2 मिनट वो एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ठीक है, तो आई एम एंडिंग द सेशन। और क्या है कि तुम लोग गूगल क्लास पे वो कर लो, लॉगिन और क्विज।